Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Richa, and nowadays I'm sharing some stories which I have been reading. Today's story goes like this. There is a mother uh, who has taught her child to share, to care, to do good things around her. One day, she sees that her daughter has two apples in her, which she is trying to eat. So she thinks of just checking how her daughter reacts to her demand. She asks her that you have two apples. Oh dear, you have two apples. Can you share one with me? And she looks at her face, and the child is confused. She is looking at both the apples, and while she's doing that, the mother is thinking that what is happening? I have taught her to share things with others, and I've always taught her good things. What is happening with her? Why is she not sharing? While she's thinking that, what the girl child is doing is she's just looking at both the apples and she bites one of the apples. The mother is shocked, and suddenly she bites the other apple too. So the mother thinks that, oh my god, what should I do? Where did I go wrong? What did I didn't teach her doing like this? That she's not sharing her thing even with me. While she's thinking and going through all these thoughts, the daughter offers one of the apple and says that, mommy, eat this one. This is more sweeter. Right? So the mother gets shocked and she feels like, oh my god, what all I thought in such a short span of time, wherein my child is so good that she wanted to taste it first and then give it, like, which is the sweetest one, right? So what does we learn from this small story? That what happens is, we as human being, we judge other person a lot without even knowing that what that other person is going through. Maybe that person is going through some situation, that's why he didn't say hi to me while I said hi to that other person, right? This happens to all of us when maybe I, for example, I went for a walk and I just said hi to one of my neighbor and she didn't reply back saying hi. So my sudden reaction will be that, oh my god, she has so much attitude. But in contrary, it might be like she didn't had a good day. Maybe she had fight with her partner, or she is going through some kind of stress at her workplace, or something of that sort can go in her head, right? And she didn't realize that I said hi to her. So next time when you are judging the other person for anything, any small or big thing, just understand the other person's situation, that what that other person might be going through, and then make your opinion towards it. So I wanted to tell this story in Hindi as well so that my Hindi viewers understand. तो स्टोरी ऐसे जाती है कि एक माँ अपने बच्चे को हर तरह से अच्छा इंसान बनाने का कोशिश करती है, उसको सिखाती है कि शेयर करना चाहिए चीज़ें, लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो एक दिन वो बच्ची दो एप्पल लेके खड़ी रहती है। तो उसकी माँ सोचती है, चलो आज देखते हैं इसका टेस्ट करके कि ये कुछ सीखती भी है या नहीं। तो वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा एक एप्पल दे दो, मुझे भी एक एप्पल दे दो, मुझे भी भूख लगी है। तो वो बच्ची अपनी माँ की तरफ कंफ्यूज्ड होके देख रही होती है, क्या करूँ ना करूँ। और वाइल मतलब जब वो देख रही होती है अपनी माँ की तरफ, माँ के दिमाग में चल रहा होता है कि अरे मैंने तो इसको हमेशा से शेयरिंग सिखाया है कि शेयर करना चाहिए, केयर करना चाहिए लोगों को, और ये तो सोच रही है देने से पहले, क्या हो गया इसको। तो जब तक वो ये सब सोच रही होती है, वो बच्ची देख रही होती है अपनी माँ को, वो सडनली एक एप्पल को काटती है। तो माँ को लगता है मे बी वो दूसरा एप्पल मुझे देगी। वो देख रही होती है उसके चेहरे पे, सडनली वो दूसरा एप्पल भी काट लेती है। तो माँ को लगता है, हे भगवान, मैंने इसको क्या नहीं सिखाया, कहाँ पे मेरी गलती हो गई, क्या गलती करा जो कि मेरी बच्ची मुझसे ही नहीं शेयर कर रही है, तो दूसरों से क्या शेयर करेगी। तो जब वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है, तभी उसकी बच्ची वॉक करके आती है और माँ को एक एप्पल देती है, कहती है, मम्मी ये खाओ, ये ज़्यादा स्वीट है, हाँ, इससे ये ज़्यादा स्वीट है, ये वाला खाओ। उसकी मम्मी सोच में पड़ जाती, ओ शिट, मतलब मैं क्या क्या सोच रही थी वाइल वो मेरे बारे में इतना सोच रही थी मेरी बच्ची की मम्मा को वो वाला एप्पल दूँ जो ज़्यादा मीठा है, और मैं क्या क्या सोच बैठी इतने ही देर में। तो
लर्निंग क्या है इस स्टोरी से कि जब हम ऐसे ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि सामने वाला बंदा हमें हर्ट करने के लिए कर रहा है या हमें हमें क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बट एज ह्यूमन बीइंग जैसा भगवान ने हमें बनाया है, हम जज करते हैं लोगों को बहुत ईजिली और बहुत जल्दी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लो कि आप वॉक करने निकले हो या मार्केट निकले हो शॉपिंग करने के लिए, और आपको कोई जान पहचान का इंसान दिख जाता है और आप उसको कहते हो हाय दूर से ही, तो आप एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न में कि वो भी हाय करे, वो भी स्माइल करे, ह्यूमन नेचर है। बट अगर वो इंसान नहीं बोलता हाय वापस से, तो क्या लगता है आपको? अरे बड़ा एटीट्यूड आ गया है, अरे पैसा वाला हो गया है, अरे ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है बंदे में, पता नहीं किस बात का घमंड है, एंड ऑल दैट गोज इन आवर हेड, राइट? बट वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि वो जो जिसको आपने हाय बोला उसका दिन खराब गया हो, मे बी उसका बॉस से झगड़ा हो गया हो, मे बी उसके घर में झगड़ा हुआ हो, मे बी उसकी तबीयत ठीक ना हो, उसने ध्यान नहीं दिया हो, उसने देखा ही ना हो कि आपने उसको हाय बोला, मार्केट में बहुत भीड़ है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक उस सिचुएशन को लेके हम उस चीज़ को कितना खींचते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो मिलता है तो हम हाय नहीं करते, कि लास्ट टाइम उसने हाय नहीं बोला तो मैं भी इस टाइम हाय नहीं बोलूँगी या बोलूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं एग्जांपल देने बैठूँ ना तो हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं और हम सामने वाले को जज कर लेते हैं कि ज़रूर ये बंदा ना मुझे डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा है, या फिर इसे मुझसे कुछ खुन्नस है इसलिए उसने मुझे ऐसा किया। नहीं। सो इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो या आप किसी को जज कर रहे हो, तो उससे पहले एक बार सोचो, उससे पहले एक बार देखो कि आखिर उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ। हो सकता है कि वो जेन्युइन रीज़न हो, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर, कि नेक्स्ट टाइम जस्ट बी लिटिल generous in your approach. As a human being, we all should be should be considerate about all these things to our loved ones. So that's all from my end today. फिर से मिलेंगे दूसरी स्टोरी के साथ. Till then, bye bye. Have a great day ahead and have a happy new year. Bye bye.